Now we are going to start with a topic which you have heard a number of times पर कभी हमने पढ़ा नहीं है. Reverse charge mechanism and e-commerce operator. RCM में आप लिखेंगे दो तरह के होते हैं, 9394. 94 में खाली एक ही सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, जिसके बारे में आज आप पढ़ोगे. So you'll write real estate sector here. 93 covers notified goods and services. Let me tell you, goods have been included in your syllabus. पहले नहीं था, अब इंस्टीट्यूट ने इंक्लूड कर दिया है. सो आरसीएम के गुड्स भी हमने पढ़ते हैं सर. यस, यू रीड आरसीएम रिलेटेड गुड्स एज वेल. Okay, then 95, give a arrow. 95 is talking about notified services where eco will pay the tax. कुछ याद है? 4 सेक्टर where eco will be responsible to pay the tax. आज या कल हो जाएगा ये. हाँ, we will see कितना आपको याद है. First we will deal with 9 subsection 3. Then we will go to 9 subsection 4. Then we will go to 9 subsection 5. Correct. Okay. So we'll start with 9.3. 9.3 में we will start with goods which are covered under RCM. देखिए, before I tell you the entries which are there in 9.3, remember कि RCM लाने का ना दो ऑब्जेक्टिव था. Why you think? Why will you tell recipient to pay the tax? क्यों? See, RCM now supplier. Sometimes supplier is a weaker person. So they shift the liability from weaker person to stronger person. एक एग्जाम्पल देता हूं. Tell me one thing. It is easier to collect tax from agriculturist or registered person who is purchasing agriculture crops. So what did government do? Government shifted the liability on the recipient under reverse charge mechanism. So government has always created RCM to shift liability from a weaker to a stronger person. But इसका ये मतलब नहीं है कि जहां भी आपको weaker stronger दिखे आप RCM लगाना चालू कर दिए. नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट ने लिस्ट दिया है. यू डोंट अज्यूम योरसेल्फ कि सर सप्लायर वीकर है, चलो आरसीएम लगा देते हैं. नेवर एवर. until and unless the goods or services are notified, we cannot have RCM. तो याद रखना, this is one of the reasons government can keep on increasing the list, but that doesn't mean that every case of weaker to stronger RCM लग जाएगा. नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक लिस्ट दिया हुआ है. ये तो वन ऑफ द रीजंस है. लाइक टेल मी वन थिंग, विल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वांट टू कंप्लाई विद जीएसटी लॉ कि वो लोग कलेक्ट करे, पे करे? नहीं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? खुद को ही यहाँ रख लिया. बोला कि हम लोग भी जब पुराने गाड़ी वगैरह बेच रहे हैं ना, तो जिसको बेच रहे हैं वो पे करेगा.
हम लोग पे नहीं करेंगे. So government, one of the reasons is shifting the liability from a weaker to stronger person. Second reason is whenever government is unable to collect tax from supplier. जब सप्लायर को गवर्नमेंट नहीं पकड़ पा रहा है तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट शिफ्ट द लायबिलिटी टू द रेसिपिएंट. इसका बेस्ट एग्जांपल विच आई कैन गिव इज सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट इन इंडिया है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस, टेल मी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में whom is it easy to collect tax from? Supplier or recipient? Recipient. इसीलिए गवर्नमेंट शिफ्टेड दैट अंडर आरसीएम. तो टू prominent reasons for RCM in the law. First one, shifting the liability from a weaker person to stronger person. And second one, whenever government is unable to collect tax from supplier, वो लोग क्या करते हैं? रेसिपिएंट पे लायबिलिटी डाल देते हैं. नाउ दिस इज ऑप्शनल. अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट इट हियर. यहाँ टू रीजंस देके यू कैन राइट दिस. दिस इज ऑप्शनल, आपकी मर्जी. हाँ, ये पूरा आरसीएम चैप्टर हम लोग यही 2 पॉइंट से सीख जाएंगे. हो गया. ओके, फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट लिस्ट ऑफ गुड्स which are covered under RCM. 9(3) deals with CGST Act and 5(3) deals with IGST Act. Now, totally 6 points hai. You can see these are the 6 points. अब पहला पॉइंट, एग्रीकल्चरिस्ट क्या क्या बेच रहा है? कैश्यू नट, नॉट शेल्ड और पील्ड. यू अंडरस्टैंड नॉट शेल्ड और पील्ड? रॉ, रॉ रॉ कैश्यू नट. देन बीडी रैपर्स, टेंडू लीव्स बोलते हैं इसको, टोबैको लीव्स या रॉ कॉटन. ये चार चीज अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को बेचोगे देन द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये तो बात हो गया एग्रीकल्चरिस्ट का. दूसरा इज एसेंशियल ऑयल्स अदर देन सिट्रस फ्रूट. Essential oils other than those which come from citrus fruit. Citrus fruit are your nimbu, lemon, I mean lemon, then orange, all these are excluded. But other essential oils. क्या चीज के essential oils? Peppermint and other mints. Other mints में इतना बड़ा लिस्ट है सर, हम लोग को ये याद रखना है. Trust me, you remember essential oils. Once you know this, if you hear this in the exam, na, you will be able to tackle it very well. Okay. This is also being purchased by a registered person. Then a person who manufactures silk yarn from raw silk to any registered person. ये normally ना farmers ही करते हैं. This is silk, सेरीकल्चर बोलते हैं इसको, सिल्क वर्म. तो सेरीकल्चर में ना वो लोग कोकून से सिल्क निकालते हैं, रॉ सिल्क, और आपने देखा वो रैप करते रहते हैं ऐसे.
हाँ, तो वो मैंने उसको उसको बोलते मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न, दैट इज अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दे सेल इट टू रजिस्टर्ड पर्सन जो उससे सिल्क साड़ी बनाते हैं। देन यू हैव सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट बाय गवर्नमेंट। डू यू नो गवर्नमेंट भी लॉटरी टिकट बेचता है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में होता है ये। गुजरात में नहीं होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट में। स्टेट्स ओनली सेल लॉटरी, तो वो लोग लॉटरी बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स, गवर्नमेंट या लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर? ऑब्वियसली लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर। बट मेरा एक क्वेश्चन है, लॉटरी टिकट इज गुड्स और सर्विस? सो गवर्नमेंट लॉटरी, yes, it will be goods because yeah, the actionable claim actionable claim is regarded as goods, and specified actionable claim are liable to GST. तो इट्स अ एक्शनेबल क्लेम, हेंस इट इज गुड्स, तो इसीलिए हम लोग गुड्स आरसीएम पे लॉटरी टिकट पढ़ रहे हैं। एंड देन क्या आपको पता है चोरी के व्हीकल जो पकड़े जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट सेल्स देम इन केस वो पता नहीं चलता है कि किसका व्हीकल है, तो पुलिस डिपार्टमेंट वो सब बेच देता है। यूज्ड व्हीकल्स या कोई सीज्ड गुड्स, जैसे कोई गुड्स बिना बिल के जा रहे थे, फिर वो ड्राइवर भाग ही जाता है और पता ही नहीं है किसके गुड्स है, तो वो गुड्स सब ऑक्शन होते हैं। तो इन दैट केस हु विल पे द टैक्स, गवर्नमेंट और रजिस्टर्ड पर्सन? registered person will pay the tax. What if recipient is an unregistered person? तो फिर फॉरवर्ड चार्ज आएगा, रिवर्स चार्ज आएगा? तब फॉरवर्ड चार्ज आएगा, तब गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, देन दे डोंट हैव एन ऑप्शन। आर यू क्लियर? यस। ओके, वही सर, याद रखना, एक लाइन मैंने बोला था, एनीथिंग विच इज नॉट एग्जेम्प्ट इज टैक्सेबल। याद आया? Anything which is not exempt is taxable. Second line, anything which is not under reverse charge mechanism will be under forward charge. तुम लोग exemption देना मत शुरू कर देना. Be very careful, people. Anything which is not under reverse charge mechanism will be under forward charge. समझ में आया? Okay. Last one. Have you heard of प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट? नहीं सुना है? ओके, डू यू नो लोन टू एग्रीकल्चर?
और होम लोन्स इज रिगार्डेड एज प्रायोरिटी सेक्टर। होम लोन्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देते ना, तो प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। अब आरबीआई का मैंडेट है कि सम परसेंटेज ऑफ लोन्स शुड बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर। बट डू यू ऑल्सो अग्री कि ये प्रायोरिटी सेक्टर को देने में डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा है? हाँ सर। तो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नॉर्मली डोंट प्रिफर गिविंग टू मच लोन टू एग्रीकल्चर। इसीलिए वो लोग ब्रांच ही नहीं खोलते हैं रूरल एरिया में, कि वहां ब्रांच खोलेंगे, पैसे तो कम आएंगे, लोन वाले ज्यादा आएंगे, फिर अगर ज्यादा नहीं बोलेंगे तो आरबीआई हम लोग को दे विल ट्रबल अस। सो क्या होता है, से सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कहा 25% ऑफ योर लोन्स शुड बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर। नाउ से सपोज one private sector bank has given 20% to priority sector. Have they met the criteria given by RBI? No. अब वहीं एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने 40% प्रायोरिटी सेक्टर को दिया है। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना, ये एक सर्टिफिकेट बना के इसको बेच सकता है कि ये लो, मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ का एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बनाएंगे, एंड दैट विल बी गिवन टू प्राइवेट सेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। समझ में आया व्हाट्स अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट? इट इज ट्रेडेबल। ट्रेड कर सकते हैं सर, हाँ। एक बैंक दूसरे बैंक को ये बेच सकता है। Now the question is, when this is being sold, this is done on a specific website of government. So पता नहीं चलता है कौन रेसिपिएंट है। ओ, इसको नहीं पता चलेगा सर? नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं पता चलेगा कौन इसको खरीद रहा है। नाउ हु इज अ बेटर पर्सन टू पे टैक्स ऑन दिस? देखो, दोनों ही स्ट्रांग है। डू यू अग्री दैट बोथ आर स्ट्रांग? दोनों ही स्ट्रांग है ना। बट पब्लिक सेक्टर बैंक को पता ही नहीं है कि रेसिपिएंट कौन है। इन दैट केस, इज इट प्रैक्टिकली सेंसिबल टू से दैट फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? सोच के देखो, मुझे पता ही नहीं है रेसिपिएंट कौन है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज सेड प्राइवेट सेक्टर, दैट इज द रेसिपिएंट विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम। यहाँ ना, ये दो लॉजिक्स वर्क नहीं करता है, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस। बट you can still say government, you can't say unable to collect tax from supplier. It is difficult for supplier to discharge tax on this, and hence government has shifted the liability under RCM. पैसे रहते हैं, आई मीन प्रायोरिटी सेक्टर 5,000 करोड़ का लोन है, तो 0.1% या 0.01% इज द चार्जेस। Okay. So these are the goods which are covered under RCM. याद है कुछ? Can you tell me what 6 categories were there? And याद रखना, जब भी यहाँ registered person लिखा हुआ है, that means only this registered person will be liable to pay tax. जब भी कुछ और लिखा हुआ है, तो क्या लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? वो आप सीखोगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। अगर यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, देन यू हैव टू मैंडेटरीली टेक रजिस्ट्रेशन। बट जहां रजिस्टर्ड पर्सन बोला हुआ है, वहां तो आरसीएम तभी आएगा व्हेन यू आर रजिस्टर्ड। ए, समझ में आया डिफरेंस? डिफरेंस देखा? जब लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट लिखा हुआ है,
तो उस लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव अ ऑप्शन, क्योंकि आपको आरसीएम में पे करना है। बट यहां जब रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है, तब आपके ऊपर लायबिलिटी तभी आएगा जब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। तो मतलब ये सब केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड हो ना, तब तो आप पे आरसीएम है ही नहीं। अगर आरसीएम है ही नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। दिस आई विल टीच यू इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर। क्लियर विद दिस? यस। बी केयरफुल। गुड्स में ना सब जगह रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलिंग एजेंट। बहुत ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट कैन टेस्ट यू ऑन दिस। हर जगह रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है, खाली लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट में उनका नाम लिखा हुआ है। वहां वो लोग रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो फर्क ही नहीं पड़ता है, वो लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन इजीली रिमेम्बर गुड्स आरसीएम, कि हर जगह रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है, खाली लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। क्लियर विद दिस? ओके। डू यू रिमेम्बर क्या क्या था आरसीएम गुड्स में? नहीं सर। पहले तो था एग्रीकल्चरिस्ट, फिर वो एसेंशियल ऑयल्स था। एग्रीकल्चरिस्ट में भी खाली 4 प्रोडक्ट्स। फिर एसेंशियल ऑयल्स था, देन सिल्क यान, देन लॉटरी टिकट तो आपको याद रहेगा, देन यूज्ड व्हीकल्स वगैरह बेचता है ना गवर्नमेंट, वो सब, एंड लास्टली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। क्लियर विद दिस? यस। ओके। अब इफ यू सी द टेक्स्ट बुक, यहाँ लिखा हुआ है रेफर नोट्स फॉर लिस्ट ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम। अब यहाँ लिखेंगे आप पेज डैश ऑफ नोटबुक, एंड अब हम लोग चले जाएंगे नोटबुक में, सर्विसेज का लिस्ट हम लोग लिखेंगे, पेज डैश ऑफ नोटबुक। बाकी सब चीज 9.3 का बैलेंस पार्ट, 9.4, 9.5, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू राइट। So you come to your notebook, give a heading RCM and Eco. Give a heading RCM and Eco. Okay. Now, main point number 1, list of services covered under RCM 9 subsection 3 slash 5 subsection 3. 9 subsection 3 is of CGST Act and 5 subsection 3 is of IGST Act. गुड्स में तो दोनों सेम है, मतलब जो भी सीजीएसटी एक्ट में दिया हुआ है वही आईजीएसटी एक्ट में दिया हुआ है। सर्विसेज में एक एंट्री खाली आईजीएसटी में है, दैट आई विल टीच यू। बाकी सब एंट्रीज दोनों में है। ओके। 2 पार्ट्स, सप्लायर, रेसिपिएंट। सप्लायर, रेसिपिएंट। 2 equal parts, सप्लायर, रेसिपिएंट।
In supplier, you'll write Roman 1. Director of a body corporate. What is a body corporate? कंपनी स्लैश LLP. क्योंकि थोड़ी देर में आप मुझे पूछोगे सर व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, आई विल से रेफर रोमन 1. डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. In the other column you'll write body corporate. So I will teach you all the entries together, but एक explain कर देता हूँ ताकि जब आप लिख रहे हो you are able to understand some part that time. डायरेक्टर अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन इन दैट केस टेल मी वन थिंग, इफ डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉय, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय नेगेटिव लिस्ट. ओके. If he is not an employee, then in that case, body corporate will pay the tax under RCM. Okay. अब time to make a mistake. Director is a chartered accountant. उसका अलग से एक सीए प्रोप्राइटरशिप फर्म भी है. अगर वो वहां से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू दी बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज. हाँ, फॉरवर्ड चार्ज, बिकॉज व्हेन वी से डायरेक्टर, डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर. क्योंकि अगर वो किसी और कैपेसिटी में कुछ और सर्विस दे रहा है, देन इन दैट केस इट इज नॉट कवर्ड बाय RCM. समझ में आया? ओके. एंड आपको पता है LLP के पार्टनर्स को भी डिन लेना पड़ता है. ऐसे तुम लोग LLP रजिस्टर किया होगा ना, डिन डिन लेना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. हाँ, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बट यू विल हैव टू, उनका ही बात कर रहे हैं. ओके, ग्रेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. रोमन 2. रोमन 2. सी आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ना, आई गेट अ क्वेश्चन, सर डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगेगा कि नहीं? वही तो समझाया, इफ इट इज एज अ एम्प्लॉय नहीं लगेगा, इफ इट इज नॉट एज एन एम्प्लॉय बॉडी कॉर्पोरेट विल पे टैक्स अंडर RCM. ट्रस्ट मी, सामने ही विंडो है. आज जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ ना, यही विंडो है. रोमन 2, लास्ट चैप्टर के बाद. चलो. ऑथर, कॉमा, म्यूजिक कंपोजर, कॉमा, फोटोग्राफर in respect of temporary transfer of rights
in an IPR. आईपीआर क्या होता है सर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो बेसिकली ऑथर ने कोई बुक लिखा और उसने राइट्स किसी पब्लिशर को दे दिया। म्यूजिक कंपोजर ने कोई गाना गाया और राइट्स दे दिया म्यूजिक कंपनी को। फोटोग्राफर ने कुछ वीडियो क्लिप्स खींचे और राइट्स दे दिया प्रोड्यूसर को। इन द रेसिपिएंट कॉलम यूल राइट पब्लिशर कॉमा म्यूजिक कंपनी कॉमा प्रोड्यूसर। और यहाँ लिखिएगा नोट 1। नोट 1 there'll be something in note 1 for this. Roman 3 renting of residential dwelling। renting of residential dwelling। केयरफुल। क्या यहाँ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस लिखा हुआ है? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कोई भी पर्पस के लिए दो, पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे रहे हो। और बाजू वाले कॉलम में लिखोगे रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, टेम्पररी ट्रांसफर सर्विस होता है ना, परमानेंट ट्रांसफर गुड्स हो जाएगा। हम सर्विस आरसीएम पढ़ रहे। रोमन 4 ये तो आप लोग को सबको याद होगा। इंश्योरेंस एजेंट। इन द अदर कॉलम यूल राइट इंश्योरेंस कंपनी। याद है? पेशेंस पीपल, अभी तक एक एंट्री भी एक्सप्लेन करना नहीं शुरू किया है एंड यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑन ऑल द एंट्रीज। एक्सप्लेनेशन तो शुरू करने दो, अभी तो लिखा रहा हूं मैं खाली। फाइव सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन सॉरी provided by circle by any person other than circle other than body corporate। other than body corporate। careful, if body corporate is providing then no RCM because other than लिखा हुआ है। in the other column you'll write registered person। registered person other than composition dealer। composition dealer other than composition dealer। then
any service provided by government / local authority. बाजू वाले कॉलम में लिखोगे बिजनेस एंटिटी एंड यहाँ लिखोगे नोट 2। ये हम लोग नोट 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के बारे में। नेक्स्ट वन, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट / लोकल अथॉरिटी। बाजू वाले कॉलम में लिखोगे रजिस्टर्ड पर्सन। दोनों के लैंग्वेज में डिफरेंस है, 6 और 7 बहुत अलग है। यहाँ बिजनेस एंटिटी लिखा हुआ है, यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन लिखा हुआ है। रेफर इट टू नोट 2 अगेन। गवर्नमेंट को हम लोग नोट 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। 10, 8, ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई। ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई ये क्या है सर? ओवरसीइंग कमिटी बेसिकली ट्राइंग टू अवॉइड फ्यूचर विजय माल्यास। क्या होता है, बड़े बिजनेसेस को लोन आसानी से मिल जाता है और फिर वो लोग भाग जाते हैं। तो ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई इज ट्राइंग टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बैंक्स एंड ट्राइंग टू सी कि क्या कोई फ्यूचर विजय माल्या है जो पैसे लेके भाग सकता है। लेट्स ट्राई टू स्टॉप हिम इवन बिफोर ही रन्स। तो इसीलिए ओवरसीइंग कमिटी में मेंबर्स है, उनका यही काम है। एंड दे गेट remuneration from RBI. So who will pay the tax? RBI will pay the tax. Ninth, renting of motor vehicle designed to carry passengers provided by a person other than circle other than body corporate। और यहाँ ना मेरे को 3 लाइंस चाहिए, 3 लाइंस। बाद में लिखेंगे, कुछ आएगा। In the other column you'll write body corporate। लैंग्वेज अलग है, बॉडी कॉर्पोरेट। 10, जीटीए। आपको पता है जीटीए? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। बाजू वाले कॉलम में लिखेंगे रजिस्टर्ड पर्सन कॉमा स्पेसिफाइड पर्सन। और स्पेसिफाइड पर्सन ओपन ब्रैकेट फैक्ट्री which is registered under Factories Act, society which is registered under Societies Act, cooperative society, comma
partnership firm, comma, body corporate, comma, casual taxable person, casual taxable person. Next, recovery agent. I am sure you know who is a recovery agent. Huh. In the other column, you'll write banks and financial institutions. Banks and financial institutions. Then arbitral tribunal. Arbitral tribunal. In the other column, you'll write business entity. Business entity. उसके बाद advocate slash senior advocate providing legal service. In the other column, you'll write business entity. Business entity. Then any person providing sponsorship service. In the other column, you'll write partnership firm, comma, body corporate. Partnership firm, comma, body corporate. And last one, यहाँ लास्ट वन लिखने से पहले आप लिखेंगे सेक्शन 5(3). या लिखना ओनली इन सेक्शन 5(3). दिस वन एंट्री इज देयर ओनली इन सेक्शन 5(3). ये 9(3) में नहीं है. Person located outside India एंड बाजू वाले कॉलम में लिखेंगे पर्सन लोकेटेड इन इंडिया. ब्रैकेट में लिखना टैक्सेबल टेरिटरी. अगर इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी है तो आउटसाइड इंडिया क्या होगा? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. करेक्ट. नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. These are some services under RCA.
Okay. Now let me explain you all these entries which we have written. Those who are learning first time from me, let me tell you, next 10 minutes अच्छे से सुनना. At the end of 10 minutes, you will be able to recall most of the entries. ज्यादातर एंट्रीज आपको याद हो जाएंगे. रेडी रेडी रेडी. चलिए, लेट्स बिगिन. नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना. Why was RCM introduced in the law? There are two basic reasons why RCM was introduced in the law. First reason is shifting the liability from a weaker person to stronger person. हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने किया है. And second, whenever government is unable to collect tax from the supplier, जब भी supplier से पैसे नहीं मिल रहे हैं, government tries to shift the liability to the recipient. Let's see. पहला, director versus body corporate. Whom is it easier to collect tax from? Body corporate. तो government ने shift कर दिया liability body corporate पे. Author versus publisher. Who is a capable person to pay tax? Publisher. So government shifted the liability on the publisher. Music composer, जो 100 songs गाएगा या 150 songs गाएगा, versus T series music company. Who is a better person to comply with the law? T series, which is a music company, they shifted the liability under RCM. Photographer versus producer. Producer is a stronger person. फिर जब एक घर रेंट पे देते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि घर अगर आप रेंट पे दोगे ना, तो नॉर्मली जो घर देता था ना, वो एक बिल्डिंग होता था उसका बस, और उससे टैक्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो गवर्नमेंट सेड जब भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आप रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे, देन इट विल बी कवर्ड अंडर आरसीएम. तो अगर जेकेएससी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है फॉर प्रोफेसर स्टे, हु विल पे द टैक्स? जेकेएससी विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम. टेल मी वन थिंग, अगर कोई प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई घर ले रहा है, प्रोपराइटर रजिस्टर्ड है पर अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले रहा है, देन इन दैट केस इट विल बी एग्जेम्प्ट. याद रखना, जो भी चीज एग्जेम्प्ट है उस पे चार्ज मत लगा देना. रेस्पेक्ट द वर्ड चार्ज. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. चार्ज लगने के लिए चार्ज खाली टैक्सेबल सप्लाई पे लगता है, चार्ज एग्जेम्प्ट सप्लाई पे नहीं लगता है. तो अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो प्लीज डोंट लेवी जीएसटी जस्ट बिकॉज इट इज अंडर आरसीएम. आरसीएम का ये मतलब नहीं है कि जहां भी हो टैक्स लग जाएगा. नहीं नहीं, आरसीएम खाली ये डिसाइड करता है कि टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर पे करेगा या रेसिपिएंट, पर उसके लिए टैक्स होना जरूरी है. अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आरसीएम. इसीलिए आपको याद है आर एग्जेम्पशन से एक्सक्लूड किया था इसको, कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. याद आया? एग्जेम्पशन चैप्टर में इसको एक्सक्लूड किया था. रेसिडेंशियल dwelling for use as residence except when provided to a registered person. क्योंकि आरसीएम लगा दोगे तो ये मतलब नहीं है कि आरसीएम आ जाएगा, एग्जेम्पशन से निकालना पड़ेगा, फिर जाके टैक्सेबल होगा, फिर जाके आरसीएम लगेगा. समझ में आया? ओके.
Who is a stronger person? Insurance agent, insurance company. Insurance company is a stronger person. Insurance company will pay the tax under RCM. सिक्योरिटी सर्विस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. यहाँ सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि अगर बॉडी कॉर्पोरेट्स है तो गवर्नमेंट फील्स दैट दे विल कंप्लाई विद द लॉ एंड दे विल आल्सो वांट टू टेक आईटीसी. तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो बॉडी कॉर्पोरेट विल पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज. और यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन. लेट मी ट्राई इट. सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन. टेल मी individual providing security service to registered person. Forward, reverse. Reverse. Partnership firm providing security service to registered person. Reverse. Company providing services to registered person. Forward. LLP providing service to registered person. Forward, forward, forward. Okay. Individual or partnership firm providing security service to unregistered person. Very good. All of you have said forward charge, which is the correct answer. Don't say it is exempt. कभी वो यूज मत कर लेना. तुम लोग अगर आरसीएम नहीं लग रहा है तो एग्जेम्प्ट मत बोल देना. आरसीएम नहीं लग रहा है तो फॉरवर्ड. फिर अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर रहा तो ही इज लायबल टू रजिस्टर, नहीं तो ही इज नॉट लायबल टू रजिस्टर. पर वो अलग हो गया, वो तो वेदर ही इज लायबल और नॉट लायबल है. यहाँ हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वेदर इट इज फॉरवर्ड और रिवर्स. समझ में आया? ओके, ग्रेट. फिर गवर्नमेंट हम लोग नोट 2 में डिस्कस करेंगे. आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी में मेंबर्स है. दोज मेंबर्स विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स. आरबीआई विल पे टैक्स अंडर आरसीएम. सो डू यू थिंक आरबीआई इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ? यस. कोई कोई है यहाँ जिनका क्लाइंट आरबीआई है? बिकॉज वंस ना अहमदाबाद में एक स्टूडेंट था, उनके ऑफिस आरबीआई का रिटर्न फाइल करते थे आरसीएम का. नहीं? ओके, मे बी दिस टाइम नथिंग. ओके, ठीक है. फिर मोटर व्हीकल. मोटर व्हीकल अगर रेंट पे दोगे बट आप अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है एंड यू आर गिविंग टू अ बॉडी कॉर्पोरेट. ये देखो, यू टेल मी विच इज द वाइडेस्ट टर्म. बिजनेस एंटिटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट. ये तीनों में से सबसे वाइड टर्म कौन सा है? Okay, most of you are correct. 2 of you, no, 3 of you have made some mistake. 4 of you have made some mistake. बाकी सब correct है. And the winning answer is बिजनेस एंटिटी सबसे वाइड टर्म है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी या तो रजिस्टर्ड हो सकता है या अनरजिस्टर्ड हो सकता है. ठीक है. सेकंड सबसे वाइड टर्म कौन सा है? रजिस्टर्ड पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट? Till now, 3 of you have made mistake. And the winning answer is रजिस्टर्ड पर्सन. क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोपराइटर हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन हो सकता है, एंड सो ऑन. बॉडी कॉर्पोरेट ना सबसे नैरो टर्म होता है कंपेयर टू दीज 3. समझ में आया? सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विथ रेसिपिएंट कौन है इन अ पर्टिकुलर सर्विस. सो इफ यू सी security and renting
दोनों में अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, तो सप्लायर तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर दोनों का स्टेटस सेम है। बट अगर आप रेसिपिएंट देखो तो यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट। सो विच वन इज वाइडर, सिक्योरिटी सर्विस या रेंटिंग? विच वन इज वाइडर, सिक्योरिटी सर्विस या रेंटिंग? करेक्ट, सिक्योर, एक मिस्टेक, सिक्योरिटी सर्विस इज वाइड बिकॉज वहां कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा तो उसको आरसीएम में पे करना पड़ेगा। पर रेंटिंग में ना ओनली बॉडी कॉर्पोरेट। एंड सर, बॉडी कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड होते हैं क्या? हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड ही होते हैं, क्योंकि वो लोग को डायरेक्टर सर्विस पे वैसे भी आरसीएम पे करना पड़ता है, तो वो लोग को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ओके, देन कम्स जीटीए। जीटीए एक ऐसा सेक्टर था ना, छोटे छोटे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को पकड़ना बहुत मुश्किल था। तो गवर्नमेंट ने कहा आपको पे करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आरसीएम में शिफ्ट कर देंगे। सो गवर्नमेंट सेड other people who are there have to pay tax under RCM. Registered person is registered under GST law. Specified persons are persons under some or the other law. देखो, factory will be registered under Factories Act. Society will be registered under Societies Act. Cooperative society will be registered under Cooperative Society Act. Partnership firm comes from Partnership Act. Body corporate comes from कंपनीज एक्ट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमने नहीं पढ़ा है, वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएगा। ओके, रिकवरी एजेंट वर्सेस बैंक, हु इज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन टू पे टैक्स? बैंक, बैंक, ऑब्वियसली। देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड एडवोकेट का एंट्री आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टेल मी वन थिंग, अगर बिजनेस एंटिटी का लास्ट ईयर टर्नओवर बिलो रजिस्ट्रेशन लिमिट है तो क्या आरसीएम आएगा? हाँ, NBFC is covered in financial institution. So whenever we use financial institution, NBFC will be included in. Okay. Then comes sponsorship service. Sponsorship service देने वाला कोई भी हो, but RCM तभी आएगा when you are a partnership firm or a body corporate. If you are a sole proprietor and sponsorship कर रहे हो तो क्या RCM आएगा या फॉरवर्ड चार्ज? Forward charge. Let me ask you one question. Tata IPL, who is the supplier? BCCI is the supplier. Thank you. Who is the recipient? Tata Limited is the recipient. Who will pay the tax? Tata Limited will be paying the tax under RCM. Are you clear with this? Okay. But what if the contract is with Tata Sons? Tata Sons is also a company, but say suppose there is a Tata Trust which is doing this and it's not a Section 8 company. Example, example. These are not real facts, just an example. Then forward charge. Okay. What if it was MR.A IPL? This is my dream. So BCCI providing services to Mr. A, it will be a case of forward charge. Yeah, are you clear with this? Yes, yes. ओके, एंड लास्ट एंट्री जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, द पर्सन इन इंडिया विल पे द टैक्स अंडर आरसीएम। ओके, अब
फॉरगेट ऑल दिस, इतना पढ़ा है ना. लेट मी टेल यू अ स्टोरी अबाउट माय फ्रेंड. मेरा एक दोस्त है, मिस्टर ए. अब मिस्टर ए हैज नाउ बिकम अ डायरेक्टर इन अ म्यूजिक कंपनी. और कंपनी ने उसको एक रेसिडेंशियल घर लेके दिया. देते हैं ना कंपनीज, घर लेके देते हैं ना, अरे रहने के लिए. तो वो एक म्यूजिक कंपनी में डायरेक्टर बन गया. कंपनी ने एक रेंट पे घर लेके दिया उसके रहने के लिए. फिर ना एक दिन ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम टेररिस्ट. ये आपको ऊपर पहुंचा देंगे. टेररिस्ट से कॉल आ गया. अब टेररिस्ट से जैसे ही कॉल आया, कंपनी थोड़ा डर गया. कंपनी अरेंज्ड फॉर इंश्योरेंस एजेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज. तो इंश्योरेंस एजेंट्स को बुलाया और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया उसको. फिर वो लोग गए गवर्नमेंट के पास हेल्प लेने के लिए. एंड आरबीआई के पास भी गए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था टेररिस्ट को. तो आरबीआई से कंसल्टेशन जरूरी है इफ यू वांट टू सेंड सो मच ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया. फिर वुड यू बिलीव, मिस्टर ए इतना डरा हुआ था कि ही यूज टू ट्रैवल इन अ रेंटेड कैब. वो रेंटेड कैब में ट्रैवल करता था. एंड समटाइम्स ही यूज टू हाइड इन अ ट्रक एंड गो होम. अरे डर था ना टेररिस्ट का, कभी कभी ट्रक में छुप के घर जाता था. वन डे ही वॉज किल्ड बाय अ रिकवरी एजेंट. Company filed a case in the arbitral tribunal with the help of advocate. Case file किया, but nothing happened. Finally, company sponsored an event outside India in the memory of Mr. A. Sir, so what? So what? फिर से सुनाता हूँ. Mr. A was a director in a music company. The company took a house on rent. He received a call from terrorist. Company arranged for insurance agent and security services. They took help from government and RBI. He used to travel in a rented motor vehicle and sometimes hide in a truck. One day, he was killed by a recovery agent. Company filed a case in the arbitral tribunal with the help of a advocate. Finally, they sponsored an event outside India in the memory of Mr. A. हम्म. कुछ याद हुआ? हाँ, दोज हु आर लर्निंग फर्स्ट टाइम वो लोग के लिए नया स्टोरी होगा. इंटरसीए वालों के लिए तो ये पुराना स्टोरी ही है. ओके. हाँ, बट रिमेम्बर, दिस स्टोरी इज जस्ट अ फिक्टिशियस स्टोरी. क्यों सर? हाँ, बिकॉज आई हैव टोल्ड दिस, क्योंकि जब भी अब मैं मिस्टर ए का एग्जांपल यूज करूंगा ना, यू विल से ही इज डेड ना. This is only a fictitious story. Mr. A is alive completely. ओके. चलिए, पहले ये स्टोरी लिख लेते हैं. फिर अभी हुआ नहीं है. हाँ, नोट 1, नोट 2, नोट 3, बहुत सारे नोट्स आएंगे इसमें. चलिए. हम्म, पहले स्टोरी लिख लेते हैं. गिव अ हेडिंग समरी. So those who have learned
फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा स्टोरी? याद हुआ कुछ? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, डोंट वरी, कल मैं वो भी टेस्ट करा दूंगा कि खाली स्टोरी याद रखने से नहीं होगा। ओह हाँ, you have to be very strong with RCM. I will try to make you mistakes tomorrow. ओके, चलिए अभी लिख लेते, अच्छे से याद रहेगा। बट आफ्टर दिस यू ऑल्सो नीड टू बी स्ट्रांग विद द एंट्रीज। उसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल्स लिखा दूं। चलिए लिखते हैं। मिस्टर ए was a director, circle director in a music company, full stop, circle music company. The company took a house on rent, circle house on rent, for Mr. A, full stop. He received a call from terrorist, full stop. The company arranged insurance agent, circle insurance agent, and security service for Mr. A, full stop. They also took help from government, circle government, and RBI, full stop. Next paragraph. He used to travel in a rented cab, circle rented cab, and sometimes hide in a truck। ट्रक के बाजू में लिखना GTA और सर्कल कर देना, फुल स्टॉप। One day, comma, he was killed by a recovery agent, circle recovery agent, full stop. The company filed a case in arbitral tribunal with the help of an advocate, full stop. Finally, comma, the company sponsored
circle sponsored any event outside India, circle outside India, in the memory of Mr. A. In the memory of Mr. A. डन डन डन, हो गया लिखना। अभी आरसीएम पढ़ना शुरू करना है। हाँ हाँ। चलिए, those who have completed, I have a question to you. What is the disadvantage to the supplier whose supply is covered under RCM? What is the disadvantage to the supplier whose supply is covered under RCM? Good. Good. All the answers till now are correct. Hey, एक wrong answer बीच में. All the answers except one is correct. This supplier will not get ITC. दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है. क्योंकि उसका आउटपुट क्या होगा? उसका आउटपुट होगा 0. As his output is 0, this supplier will not get ITC. तो कभी कभी ना सप्लायर्स गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब पूरा इंडस्ट्री गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट हम लोग को फॉरवर्ड में लेके आओ ना. वाई विल सम इंडस्ट्री रिक्वेस्ट कि हम लोग को फॉरवर्ड में लेके आओ? सो दैट दे कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी. अब ऐसा ही एक रिक्वेस्ट किया ऑथर्स ने. ऑथर्स ने रिक्वेस्ट किया, गवर्नमेंट हम लोग को फॉरवर्ड चार्ज में आने दो ना, क्योंकि हम लोग भी एसी परचेस करते हैं, टेबल परचेस करते हैं, चेयर परचेस करते हैं. हम लोग को फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है गवर्नमेंट, हम लोग को आरसीएम में नहीं रहना है, क्योंकि हम लोग को आईटीसी नहीं मिलता है. एंड ऑथर इज वन इंडस्ट्री जहां कोई भी गवर्नमेंट उनसे ज्यादा आर्ग्यू नहीं करता है, बिकॉज दे विल राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो इसीलिए गवर्नमेंट अलाउड ऑथर्स टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज. सो ऑथर्स can take registration and pay tax under forward charge. They have an option to choose forward charge. Now you tell me, if a author chooses to pay tax under forward charge, whether RCM will apply? No, because then he's covered by the exception. It will not be a case of RCM. But government ने एक condition भी रखा है, he cannot shift for 1 year
from the date of exercising the option. अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन लिया और ऑफिसर को लेटर लिखा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करने वाला हूं, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन 1 साल तक आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट नोज वेरी वेल ये लोग फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, फिर ये लोग को लगेगा अरे अरे इतना सारा कंप्लायंस करना पड़ता है, सीए को फीस भी देना पड़ता है, मेरा तो आईटीसी इससे कम है, इससे अच्छा तो फॉरवर्ड चार्ज से अच्छा तो आरसीएम ही था. बट नाउ गवर्नमेंट सेज 1 साल तक तो यू विल हैव टू पे द चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीनिंग फॉर 1 ईयर यू कैनॉट चेंज फ्रॉम फॉरवर्ड टू रिवर्स. समझ में आया? ओके, लेट्स राइट इट एज नोट 1. एन ऑथर, याद रखना खाली ऑथर के पास है, म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर के पास नहीं है. एन ऑथर हैज एन ऑप्शन to take registration and pay tax under RCM. Sorry, good morning, Nitin. And pay tax under forward charge. Full stop. He will have to inform the officer regarding exercise of this option. Full stop. He cannot shift to RCM for 1 year from the date of exercising the option. Date of exercising the option. Okay. Note 2. Any service. Note 2 हम लोग पहले लिखेंगे फिर समझेंगे. Provided by government slash local authority to business entity is covered by RCM. Full stop. However, comma, the following exceptions are not under RCM. Roman 1, or you can write A. A. First 3 limbs of government related exemption. क्या आपको फर्स्ट 3 limbs ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जेम्पशन कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट 3 limbs of government related exemption.
यस, याद आ रहा है सर। एक्सक्यूज मी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्लैश इंडियन रेलवेज, कॉमा ट्रांसपोर्टेशन, कॉमा एयरक्राफ्ट स्लैश वेसल। ये तीन फर्स्ट थ्री लिम्स थे। वहां हम लोग ने लिखा था ना, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, वो इसके हिसाब से ही लिखा था कि फर्स्ट थ्री लिम्स आरसीएम से एक्सक्लूडेड है, तो आरसीएम से एक्सक्लूडेड है तो वो लोग फॉरवर्ड चार्ज में लाए। बी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई रेंट पे दिया है, गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा, ऐसा लिखा हुआ था इस एंट्री में। पर आफ्टर सम टाइम ना, गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि हम लोग के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, और इतने सारे प्रॉपर्टी में ना फॉरवर्ड चार्ज देना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। देन गवर्नमेंट अगेन ब्रॉट रेंटिंग अंडर आरसीएम। बताओ, रेंटिंग को आरसीएम के एक्सेप्शन में डाला, अब वापस आरसीएम लेके आना है, क्या करोगे? रेंटिंग एक्सेप्शन, अब रेंटिंग को वापस आरसीएम में लेके आना है, क्या करोगे? सर वापस लेके आना है तो इसको यहां से निकाल दो। दैट इज हाउ वी थिंक। You know what government did? Government added a new entry. Huh? Huh. And then changed the wordings of that. चलो दिखाता हूँ, पहले लिखा देता हूँ फिर समझाता हूँ। However, comma, government wanted to bring renting of immovable property under RCM, ब्रैकेट में लिखना, एक्सेप्ट इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का सब कुछ फॉरवर्ड चार्ज में होता है। हाँ, इंडियन रेलवेज का रेंटिंग भी फॉरवर्ड चार्ज में आता है। इंडियन रेलवेज का कोई भी चीज आरसीएम में नहीं आता है। हाँ, अभी नए एग्जेम्पशन एंट्री आए हैं जुलाई में, बट अदरवाइज सारा इंडियन रेलवेज का सर्विस फॉरवर्ड चार्ज। एंड हेंस दे एडेड एंट्री, कैन यू टेल मी द रोमन नंबर? 7 होगा, वो सेकंड वाला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन। 7, एंट्री 7 अबव, एंट्री 7 अबव। तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ सर? नेट इम्पैक्ट हुआ कि रेंटिंग बाय गवर्नमेंट इज कवर्ड बाय आरसीएम, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। नेक्स्ट 3 minutes I need your help badly. टेल मी, फर्स्ट थ्री लिम्स फॉरवर्ड चार्ज में आएगा या रिवर्स चार्ज में आएगा? सर फर्स्ट थ्री लिम्स किसको भी दो, टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फर्क ही नहीं पड़ता है। बिजनेस एंटिटी है, अदर देन बिजनेस एंटिटी है, गवर्नमेंट है, किसी को भी दो, फर्स्ट थ्री लिम्स पर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, अब अदर देन फर्स्ट थ्री लिम्स, अदर देन फर्स्ट थ्री लिम्स बाय गवर्नमेंट or local authority to other than business entity, can you help me
कि अगर जैसे मुंबई पुलिस आप लोग को सर्विस देगा तो क्या होगा? अदर देन फर्स्ट थ्री लिम्स टू ऑल ऑफ यू, exempt is the correct answer. Good. To business entity जिसका लास्ट ईयर टर्नओवर इज बिलो रजिस्ट्रेशन लिमिट। सर ये भी एग्जेम्प्ट होगा। ए यू अग्री? यू अग्री? वेरी गुड। टू बिजनेस एंटिटी जिसका पीएफवाई टर्नओवर इज मोर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट। Taxable under RCM. Does everyone agree to this? Very well, sir. अब आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। ये नया है, अब ध्यान से देखना। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, अगर ये लोग टू अदर देन बिजनेस एंटिटी देंगे तो, अगर आपको गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, आप लोग को अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है ना, इट इज एग्जेम्प्ट। इज इट सर? यस, टैक्स नहीं लगता है। अगर आपको गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देता है, इट इज एग्जेम्प्ट। बट अगर बिजनेस एंटिटी को देता है तो चेक करना पड़ेगा क्या वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है। देखना, रोमन 7 का वर्डिंग ना, डिफरेंशिएट इट विथ रोमन 6। रोमन 6 में लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी, रोमन 7 में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम, और अगर अनरजिस्टर्ड को देगा तो क्या होगा? अगर अनरजिस्टर्ड को होगा, आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। टेल मी थ्री थिंग्स। अगर गवर्नमेंट आप लोग को तो एग्जेम्प्ट, अगर गवर्नमेंट आप लोग को प्रॉपर्टी देगा तो एग्जेम्प्ट, अगर प्रॉपर्टी देगा टू जेकेशा क्लासेस फॉर रेंट देन, सर देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम, बराबर? हाँ सर, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अगर गवर्नमेंट एक छोटा सा पान शॉप को रेंट देगा तो, पान पान का एक छोटा सा शॉप है, उसको रेंट पे दिया है एक जगह, देन इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि इसका एग्जेम्पशन नहीं है। सर बट उस पान शॉप का लास्ट ईयर टर्नओवर बिलो रजिस्ट्रेशन लिमिट रहेगा ना। एंट्री में रेंटिंग एक्सक्लूडेड है। लेट मी शो इट टू यू। कैन समवन टेल मी द पेपर जहां 2.4 रेंटिंग हमने पढ़ा था? रेंटिंग रेंटिंग 2.4 पढ़ा था, और वहां वो एंट्री रहेगा ऑन दी सेकेंड पेज ऑफ 2.4। या नहीं नहीं, उसी पेज पे, उसी पेज पे, पेज 90, पेज 90 पे जाके देखो। वहां ये वाला एग्जेम्पशन है, लास्ट ईयर टर्नओवर बिलो रजिस्ट्रेशन लिमिट, वहां फर्स्ट थ्री लिम्स एक्सक्लूडेड है और रेंटिंग भी एक्सक्लूडेड है। पेज 90 जाके देखो। मिला मिला, लास्ट में है ना, या नेक्स्ट पेज के फर्स्ट में है? लास्ट में, ओके। लास्ट में, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ होगा, पेज 90 लास्ट पॉइंट एंड लास्ट लाइन में रेंटिंग लिखा हुआ है। दिस आई डोंट थिंक दे विल आस्क इन द एग्जाम, बिकॉज दिस इज अ इंटरप्रिटेशन। As it is not under RCM, it will be forward charge. As it is not exempt, it will be taxable. ये ICI मैट में भी नहीं है।
सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू, बट डिड यू ओवरऑल अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क करता है? Okay, now go ahead, write this entire thing in your notebook. ये लिखिए. अच्छा लगा? इसीलिए रेंटिंग वो गवर्नमेंट एग्जामेशन पढ़ते समय ना, आई टोल्ड यू दैट वी विल डिस्कस इन आरसीएम, बिकॉज उस समय इतना समझाना was not possible for me. Done, done. Okay. Okay, last discussion for today. GTA. Tell me one thing. GTA को आरसीएम में डाल दिया है. Will big GTS get angry? क्योंकि बिग जीटीएस की परचेजिंग ट्रक, और ट्रक पे 28% जीएसटी लगता है. तो जो बड़े बड़े जीटीए है ना, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऐसे कैसे चलेगा, ट्रक पे 28% जीएसटी लगता है. अगर आप हम लोग को फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं देंगे, देन वी विल नॉट गेट आईटीसी.
और हम लोग को अगर आईटीसी नहीं मिलेगा, इट विल बिकम आवर कॉस्ट, तो हम लोग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, वी विल हैव टू चार्ज मोर, क्योंकि हम लोग तो ग्रोइंग बिजनेसेस है ना, तो हम लोग को तो आईटीसी चाहिए. नाउ यू टेल मी, डिड गवर्नमेंट गिव एन ऑप्शन टू जीटीए एज वेल to pay tax under forward charge? The answer is yes, totally. तीन सेक्टर है जिनके पास ऑप्शन है टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज. वन, ऑथर. सेकंड, जीटीए. एंड थर्ड, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल. ये तीन सेक्टर कैन पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज. They have an option under the GST law. Let me summarize this in note 3. आप हेडिंग देंगे नोट 3, जीटीए समरी. जीटीए समरी. और यहाँ दो पार्ट होंगे. फर्स्ट पार्ट में ज्यादा जगह नहीं चाहिए, बिकॉज जीटीए providing service to unregistered person other than specified person. क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन तो आरसीएम में है. जीटीए प्रोवाइडिंग सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन इज एग्जेम्प्ट. इसमें फॉरवर्ड कभी लगेगा ही नहीं. इसमें आप कुछ भी कर लो, ये तो एग्जेम्प्ट है. यू कैन टैक्स दिस अंडर आरसीएम. जीटीए टू रजिस्टर्ड पर्सन कॉमा स्पेसिफाइड पर्सन, दो ऑप्शन है. फर्स्ट पार्ट में जीटीए opts to register and pay tax under forward charge. Now, GTA, if it registers and opts to pay tax under forward charge, then it is taxable under forward charge. और ब्रैकेट में लिखना cannot change for a financial year. Careful, लैंग्वेज डिफरेंट है. 1 ईयर और फाइनेंशियल ईयर में फर्क होता है. 1 ईयर इज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, और यहां लिखा हुआ है कैन नॉट चेंज इन अ फाइनेंशियल ईयर. मतलब जीटीए हैज टू चूज फाइनेंशियल ईयर वाइज ओनली. एंड सेकेंड पार्ट में जीटीए डज नॉट ऑप्ट टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज. If they don't opt to pay under forward charge, then it will be taxable under RCM in the hands of registered person, comma specified person. Registered person, comma specified person. Hmm. Yeah, possible. So एक फॉर्म देना पड़ता है, पर वो फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ रेट नोटिफिकेशन. इनफैक्ट रेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, बट लेट मी टेल यू, यहाँ ना देर आर टू रेट्स, 12% और 5%. 12% इज विथ आईटीसी, 5% इज विदाउट आईटीसी. और यहाँ द रेट इज फिक्स्ड एज 5%. बट रेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा. प्लीज आप रेट्स का टेंशन नहीं, मतलब रेट्स याद रखना ही नहीं है. 18 दिया हुआ है, 18 लगाओ. गो बाय द क्वेश्चन. पर एक्चुअली फॉरवर्ड चार्ज में दो ऑप्शन है, 12 एंड 5.
रिवर्स चार्ज में एक ही रेट है 5%। डन डन। ओके, एक ऊपर मुझे सेंटेंस लिखाना है जीटीए के लिए। कम टू दैट पार्ट। हाँ, इफ जीटीए का बिल में अगर जीएसटी नहीं लिखा हुआ है तो आपको पे करना है आरसीएम में। 10 पॉइंट पे आइए। जीटीए नॉट ऑप्टिंग टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज। एंड फिर लिखना नोट 3, नॉट ऑप्टिंग टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज। आरसीएम कब लगेगा? when GTA is not opting to pay under forward charge। लैंग्वेज समझ में आया? नॉट ऑप्टिंग टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि अगर जीटीएन ने फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट किया है तो फिर तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। 3B वो सीखोगे सीखोगे, आएगा। पेशेंस। नॉट ऑप्टिंग टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके, इसके ऊपर रेंटिंग में यू रिमेम्बर हमने 3 लाइंस छोड़ा था। यहां लिखेंगे नॉट पेइंग टैक्स एट 12% प्लस फ्यूएल चार्जेस इंक्लूडेड इन इनवॉइस। नॉट पेइंग टैक्स एट 12%, नॉट पेइंग टैक्स एट 12%। दैट मीन्स क्या ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला 12% पे कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज? क्या रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला 12% पे कर सकता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज? द आंसर इज यस। नाउ इफ ही इज पेइंग अंडर 12% अंडर फॉरवर्ड चार्ज, विल आरसीएम अप्लाई? नहीं, क्योंकि ही इज पेइंग टैक्स अंडर 12%। पहले यही वर्डिंग्स जीटीए में भी था, पर फिर जीटीए में ना 2 रेट आ गया, 12 एंड 5। तो फिर वो लोग फिर लैंग्वेज यहाँ चेंज कर दिए, नॉट ऑप्टिंग फॉर फॉरवर्ड चार्ज। तो दोनों में लैंग्वेज अलग है। फ्यूएल चार्जेस इंक्लूडेड मतलब इट शुड नॉट बी अ प्योर रेंटिंग। उसमें फ्यूएल का भी जो कॉस्ट होता है वो इंक्लूडेड है, क्योंकि फ्यूएल ना कुछ लोग अलग से लिख देते हैं कि फ्यूएल पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट दोनों पे लगेगा। ओके, आई हैव लेस टाइम फॉर रैपिड फायर टुडे। और है अभी नोट 4, नोट 5, नोट 6 है विच वी विल डू टुमारो, बट as of now I have some questions for you. Okay, I'll focus on RCM only. Let's see how much you recall. डायरेक्टर रेसिपिएंट में क्या लिखा हुआ है? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी। ऑथर, पब्लिशर। म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपनी। फोटोग्राफर, प्रोड्यूसर। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बाजू में रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर, ठीक है। एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, बिजनेस एंटिटी।
Renting of immovable property by government or local authority. Registered person. Residential dwelling. Renting. Registered person. ठीक है. Recovery agent. Banks and financial institutions. Overseeing committee of RBI. RBI. Renting of motor vehicle for other than body corporate. Sorry, provided by other than body corporate to a body corporate. ठीक. Then GTA. सर बहुत बड़ा लिस्ट है. रजिस्टर्ड पर्सन कॉमा स्पेसिफाइड पर्सन. और स्पेसिफाइड पर्सन में फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. ठीक है. फिर एडवोकेट. बिजनेस एंटिटी. बिजनेस एंटिटी लिखा हुआ है. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. बिजनेस एंटिटी. स्पॉन्सरशिप सर्विस. पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट. पर्सन आउटसाइड इंडिया. पर्सन इन इंडिया. अब क्या आप लोग को गुड्स आरसीएम याद है? बिकॉज दिस इज न्यू फॉर एवरीवन. नहीं सर, अब तो कहाँ गुड्स आरसीएम कहाँ याद है. ठीक है. एग्रीकल्चर, कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे? नहीं वो नहीं पता सर. कैश्यू था, बीड़ी लीव्स, टोबैको लीव्स, एंड लास्टली रॉ कॉटन. ठीक है. और एक तो एग्रीकल्चरिस्ट था. फिर एसेंशियल ऑयल्स. उसके बाद सिल्क यार्न. यस. मैन्युफैक्चरर. उसके बाद लॉटरी टिकट. फिर यूज्ड व्हीकल्स या कंफिस्केटेड या सीज्ड गुड्स. एंड लास्टली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट. इन सब में हर जगह रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन, बट लॉटरी के केस में लिखा हुआ है लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट ऑफ दैट लॉटरी. याद आया? बाकी हर जगह इट इज रजिस्टर्ड पर्सन. थैंक यू फॉर 2 minutes extra today. See you all tomorrow. Take care. Bye bye. या फर्स्ट 3 limbs के जैसे एक्सेप्ट है. हाँ, अदर डाउट